aerodynamic shield optimized indirect air wind flow gently to the rotation circle, which increases the efficiency of the wind farm with the leverage effect. Performance doesn't depend on the direction of airflow. The concentration of airflow is created by streamlined structures built in the shape of a flower and forming a building, giving the entire structure of the installation a monolithic architectural form. Cost of wind energy complex will amount to no more than 4-6% of the building cost. Here is a comparison of the better wind farm with wind farms of the classic type, harmony with existing buildings and the environment, the possibility of placement directly in an urban environment. There is no energy loss, remoteness from inhabited places, infrastructure costs, losses of 7% of energy when transmitting over distances, safety. No noise. Low-speed design ensures noiselessness. There is no infrasound. The presence of intense noise up to 70 dB and infrasound, which has an adverse impact on the nervous system of living creatures. Power generation is possible at wind speeds of 4 meters per second. The possible height of the building is more than 190 meters. The ability to use a gravity energy storage. The possibility of airflow concentration. The larger the area of the plates, the more energy. The airflow direction is carried out along a tangential line to the rotation circle of the plates. Workability doesn't depend on wind direction. Speed of rotation is 47 revolutions per minute. Vibrations are excluded. Here is application possibilities. Energetics is ready to make a step into the future. That expression of the experts of the International Forum Technoprom gave the start to the discussion. There is an analogous building, Pearl River Tower, in China, but they provide themselves with 10% of energy. We do 200. It is a great discovery of yours. It needs developing. I think it is a forward-looking line of business. You will definitely get support of the experts who understand what it is and how it can be useful in urban construction, architecture, energy supply,
in solving some global technical problems of the modern world. My congratulations to this. There is an open idea which is very well to make a wind stream coincide in the wind stream which flows around the building, which is constructed in a special way. Wherever the wind blows from the wind stream, we get into the wind turbine. The rotation passes to the machines and the energy is generated. I am always excited to discuss interesting projects. Keep it up. That is my advice. Keep it up. This type of building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and even in the Moscow city area. So get ready to work with energy source. Another thing is that everything needs to be implemented. Our business is becoming very technological today. Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on official website. Zero carbon energetically era starts with Vetya project. यस दोस्तों, वेलकम। आज की इस बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले लाजवाब टेक्नोलॉजी के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं उन लोगों से एक बार वेलकम करना चाहूँगा जो पहली बार हमारे सेशन के अंदर इस सीटिंग के अंदर आए हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम विपुल फ्रॉम जयपुर, और इस बिजनेस को तकरीबन हम लोग 83 डेज हमारे कंप्लीट हो चुका है, जो कंटिन्यू हम उसको लीड कर रहे हैं। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर
आज हमारी जो ग्रोथ रेशियो है फैंटास्टिक है, शानदार है। पूरी वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है फिलहाल 10,347 के समथिंग कम्युनिटी है, और उसमें हमारी जो पार्टिसिपेंट है समथिंग 65% का रोल हमारे टीम के अंदर का अकॉर्डिंग है। दोस्तों इसी के साथ में मैं उन लोगों को एक बार वेलकम करना चाहूंगी जो पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं। विटर की जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होने वाला है, सबसे पहले मैं ये बात कर लूं। आज हम स्पेशल कुछ पार्ट करने वाले थे, मगर पीपीटी भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट ना होने की वजह से हम वो पीपीटी या शो नहीं कर पाएंगे, मगर हमारी जो पुरानी पीपीटी है उसके तहत आज हम शेड्यूल को यहाँ पर टॉक अबाउट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा ये रहेगा कि अबाउट ऑफ वीटर के बारे में जानेंगे, पावर ऑफ वीटर इसके बारे में जानेंगे। हमारी जो सेकंड राउंड है, मिस्टर मोहित जी आज हमारे बीच में अवेलेबल है, तो मोहित जी को इनवाइट करेंगे। उसके बाद में उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। उसके बाद में एक पॉइंट हमारा भी है केवाईसी का, यानी कि इस आईडी को हम लोग केवाईसी के रूप में कैसे अपग्रेड करें। तो सबसे पहले मैं वेलकम उन लोगों को करना चाहूंगा जो पहली बार हमारे सेशन के अंदर आए हुए हैं। तो प्लीज रेज योर हैंड, आप अपने हाथ ऊंचा करें। प्लीज जो पहली बार हमारे ट्रेनिंग सेशन के अंदर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, अपनी हाथ को ऊंचा करें। यदि कोई पहली बार, शबीर अली जी, ओके वेलकम। शबीर अली जी मोस्ट वेलकम हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और भी कोई हो? ओके, जॉर्ज लामा, ओके जॉर्ज लामा जी मोस्ट वेलकम इस बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर, आपको भी मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू अगेन। और भी कोई है तो ओके, सबको मेरी तरफ से वेलकम है, और कोई लोग आते रहेंगे। अभी हम लोग 57 के समथिंग अराउंडिंग हम लोग यहाँ पार्टिसिपेंट है, और समथिंग हम धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरा जो आज का सेशन, केवल मैं टाइम को इधर उधर स्पेंड ना करती हूँ, डायरेक्ट अपन पॉइंट की बात करेंगे। हमारा जो मेन पॉइंट क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो राइट, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है पावर ऑफ बीटर क्या चीज़ है, इसके बारे में मेरी सेशन ओनली फॉर 15 से 20 मिनट का सेशन मेरा है। तो उसके बाद में मोहित जी का, तो मैं बात करूंगा पावर ऑफ बीटर के बारे में। थैंक यू, जस्ट 1 मिनट। ओके राइट दोस्तों, अभी हमारे पास टाइम करीब 45 मिनट्स का हमारे पास में टाइम अभी भी है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला सेशन है ओनली फॉर बीटर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज बीटर टेक्नोलॉजी, क्या है, दुनिया के अंदर क्या करने वाला है, इस लाजवाब इंडस्ट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाला फ्यूचर के अंदर हमारा फ्यूचर किस तरीके से ब्राइट होने वाला है, तो मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। दोस्तों सबसे पहले इस इंडस्ट्री के सबसे पहले मैं उन लोगों को एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा जो पहले को आज देख पा रहे हैं। तो प्लीज अपने माइंड को यहाँ पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, क्योंकि आज की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम है। यदि आपके पास में, यदि इस कंसंट्रेट के अंदर आपने 15 से 20 मिनट के अंदर आपने इसको समझ ली, तो दोस्तों आपके जिंदगी के टर्निंग पॉइंट यहाँ पर अचीवमेंट होने जा रहा है। तो मैं ये क्लियर बता दूं दोस्तों, वीटर क्या है इसके बारे में केवल 15 मिनट आपको ध्यान से सुनना है। यदि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर फैंटास्टिक तरीके से आपका ग्रोथ देने वाला है। दोस्तों वीटर क्या है इसके बारे में बता दूं। दोस्तों वीटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक एनर्जी का एक अरेबल सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जिबल सिस्टम ऑफ पेंडेमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया गया है, और जो आने वाला टाइम के अंदर दुनिया के अंदर सबसे डिमांडेबल प्रोजेक्ट के तौर पे इनको देखा जा रहा है। तो इसकी जो सीईओ है वो मिस्टर डेनिस है, डेनिस टैगडिन। और इनकी मैं बैकग्राउंड की बात करूं, बैकग्राउंड तो बहुत लंबी है मगर इतनी ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। मिस्टर डेनिस टैगडिन एक्चुअली क्या कि इंजीनियर भी है,
और इनकी एक तरीके की इस इन्वेंशन का साइंटिस्ट भी है। तो इन्होंने जब इसकी संरचना करी तो उसके बाद में इसकी सारी जो सर्टिफिकेट की अनाउंसमेंट है वो सारी कंप्लीट करने के बाद में इसका जो विजन मिशन है, इसका जो विजन मिशन पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी पॉल्यूशन क्रिएटेड वाला सिस्टम है, यानी कि जहां से भी हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जहां से गाड़ी से हो, फैक्ट्री से हो, किसी भी माध्यम से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उस पॉल्यूशन को खत्म करना इसका एक विजन मिशन का सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा पार्ट एनर्जी का सोर्स पैदा करना। अभी तक पूरी दुनिया के अंदर यानी कि पॉल्यूशन के साथ में पॉल्यूशन खत्म करने के साथ में एनर्जी सोर्स पैदा करने का दुनिया के अंदर कोई भी सिस्टम अभी हमारे पास में नहीं है। यदि है तो काफी लार्ज वाला सिस्टम है। दोस्तों ये सिस्टम इसके विजन मिशन के साथ में बहुत बड़े लेवल के साथ में इनकी शुरुआत हुई है। और इस बिजनेस को क्यों करे, इस टेक्नोलॉजी को क्यों समझे, क्यों देखे और क्यों करे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम के अंदर आप जानते हैं, हम जानते हैं कि जिस तरीके से जो एनर्जी का स्रोत हमारे पास में अवेलेबल है, एनर्जी का मतलब जिस तरीके से आज हमारे पास में सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला हमारे पास में कोई रास्ता है, तो वो हमारे पास में अलग अलग रास्ता है, जिसको कहते हैं थर्मल सिस्टम, जो कोयले से बिजली बनाया जाता है। दूसरी बात वाटर यानी कि पानी के द्वारा बिजली बनाया जाता है। तीसरा है सोलर सिस्टम यानी कि सोलर यानी कि सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाया जाता है। चौथी है यूरेनियम के माध्यम से बिजली बनाया जाता है। ये जितना सभी प्रोसीजर है इसके अंदर काफी बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है। और इसकी मैं साइड इफेक्ट की बात करूं, इसके अंदर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर एक बेहतरीन तरीके से बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला बेहतरीन रास्ता है। दोस्तों ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, क्यों करूं इस बिजनेस को, क्यों करूं इस टेक्नोलॉजी को, क्यों देखूं इस टेक्नोलॉजी को, ये सबसे मैंने पॉइंट जो बताया है कि इसका जो पॉइंट अब तक हमने जो देखा हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला जो पावर सिस्टम है वो काफी एंशिएंट है, वो पुरानी है। अब हमारे पास में नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। यदि हम उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो डेफिनेट है कि हम आने वाले टाइम में तो फास्ट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऐसी नई जमाने का नया इन्वेंशन है, एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके तहत आप यहां पर देख भी पा रहे कि आने वाला टाइम के अंदर इस टेक्नोलॉजी के अंदर ये जितनी सारी चीजें जो साइड इफेक्ट हमारी हो रही है, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उसको अलग करके नई इन्वेंशन की जरूरत है। तो दोस्तों ये जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का इस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है कार्बन फ्री एनर्जी, यानी कि जितनी भी मार्केट से जितनी भी कार्बन क्रिएट वाला ऑप्शन है, यानी कि गाड़ी से निकलने वाला कार्बन, उसके बाद में फैक्ट्री से निकलने वाला कार्बन धुआं, तो ये जितनी भी कार्बन को खत्म करने वाला दुनिया के अंदर बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। ये क्या काम करेगा, कार्बन को फ्री करेगा, उसके बाद में पॉल्यूशन ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करेगा, उसके बाद में ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं विदाउट मेंटेनेंस यानी कि ना के बराबर मेंटेनेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों ये है वाई का रीजन कि इस टेक्नोलॉजी को क्यों देखें। यदि दोनों में डिफरेंस की मैं बात करूं तो जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों वीटर की। दोस्तों वीटर एक दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाला टाइम के अंदर ये हवा को यानी कि जितनी भी एयर हमारे जो एनवायरमेंट के अंदर जो एयर है उस एयर को फिल्टर करने का काम करेगा। जिस तरीके से आप ये ग्राफ के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए धरती से लेकर के यानी कि 100 मीटर 200 500 250 मीटर के दायरे में ऊपर जो भी हवा चल रही है तो उस हवा को अपनी तरफ अट्रैक्शन करके यहाँ पर इन्वॉल्व करेगा इसकी टावर के माध्यम से। उसी तरीके से टावर को जैसी इस हवा को अपनी तरफ से इंटैक्ट करेगा तो इसकी जो मैकेनिज्म है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी दो तरीके से सिस्टम को मूवमेंट करेगा। क्या करेगा, इसकी टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली इसकी जो मैकेनिज्म है उसकी पंखुड़ी की द्वारा जो भी वहां पर मूवमेंट करेगा तो मूवमेंट के तहत यहाँ पर अंदर ही अंदर या फ्रिक्शन पैदा करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा फ्रिक्शन के माध्यम से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिस्टम क्रिएट करेगा उसी के तहत दोस्तों ये आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक दे रखा है डिसएडवांटेज और एडवांटेज का सिस्टम है, यानी कि जो भी क्रिएट सिस्टम यहाँ कार्बन क्रिएट सिस्टम है उसको इंटेक किया जा रहा है, यहाँ पर इसको खींचा जा रहा है, खींच करके ऑटोमेटिकली इसी कार्बन को ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीजन में फिल्टर किया जा रहा है।
यानी कि जैसे हम लोग पानी को साफ करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को भी यहाँ पर साफ किया जा रहा है, यानी कि जो कार्बन जो हवा के अंदर है उसको भी यहाँ पर फिल्टर करने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो फिल्टर वाला जो वहां पर ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन के माध्यम से ऑटोमेटिकली इसका मैकेनिज्म वहां रोटेट करके वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। वो इलेक्ट्रिसिटी कितना खतरनाक है, कितना शानदार है, वो चीज हमें देखना जरूरी है। इससे क्या फायदा होगा कि दुनिया के अंदर ये प्रोजेक्ट जहां पर भी लगेगा तो वहां पर इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी कैपेबिलिटी है 300 मेगावाट तक भी बिजली पैदा करने की क्षमता है। यानी कि 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक भी बिजली पैदा करने की क्षमता यदि हवा से बिजली बनने की कैपेसिटी के अंदर आ जाए तो दोस्तों अपने आप में कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी का ये एक इन्वेंशन है। ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं। जिस तरीके से अभी पंखुड़ी देख पा रहे हैं तो हवा के अंदर अब सारी कार्बन भी आप देख पा रहे हैं, तो उस कार्बन को फिल्टर करके कार्बन को एक साइड में अलग कर दिया जाता है और यहाँ पर प्यूरिफाइड ऑक्सीजन यानी साफ सुथरा जो ऑक्सीजन है, हमारी एनवायरनमेंट को साफ ऑक्सीजन भी मिलता है और यहाँ पर उसी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने का हमें नई एक तरीका का मिल जाता है। दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर अभी एक ऐसी कंडीशन में है जिसकी शुरुआत हम लोग अभी जस्ट देख ही पा रहे हैं, शुरुआत है इनकी। ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये लगेगा कहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोग इसके बारे में सवाल करते हैं, सर ये टेक्नोलॉजी कहाँ पॉसिबिलिटीज है, कहाँ का लग सकता है ये। तो मैं आपको बता दूं, ये टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर ये जितने भी पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये कहीं पर भी लग सकता है। पब्लिक एरिया में भी लग सकता है, उसके बाद में गवर्नमेंट एरिया के सेक्टर में भी लगाया जा सकता है, उसके बाद में बड़े बड़े मॉल्स में लगाया जा सकता है, उसके बाद हॉस्पिटल में लगाया जा सकता है, उसके बाद मैं बात करूं बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर लगाया जा सकता है। ये टोटल पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कहीं पर भी जिसकी जहां पर जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग वहां पर उसकी लगाई जा सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है केवल हमारे जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में नहीं लग रहा है तो कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। अलग अलग कंट्री के अंदर, जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर 206 कंट्री है, तो 206 देशों के अंदर जहां पर भी जिसकी जहां जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग कहीं पर भी ये लगाया जा सकता है। फिलहाल में इसकी जो सबसे बड़ा जो इन्वेंशन का काम, इसकी जो स्टेबिलिटी का काम, इस प्रोजेक्ट को लगाने का जो सबसे बड़ा प्लानिंग फिलहाल दुबई में चल रहा है। तो इसकी जो आप एरिया देख सकते हैं कहां कहां पे कैसे करके लगाया जाएगा, तो यहाँ पर हर जगह के स्पेस एक एक करके मोमेंटम में दे रखा है। इसकी जो हाइट है वो हाइट समथिंग आप मान के चलो 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की ऊंचाई तक भी इसको अपन हम लगा सकते हैं। यानी कि डेफिनेटली इसकी जो पैमाना है आप यहाँ मान के चलो मिनिमम 100 मीटर और मैक्सिमम 1000 मीटर की अकॉर्डिंग भी हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप बुर्ज खलीफा देख पा रहे हैं, ये बुर्ज खलीफा दुबई की है, राइट। तो बुर्ज खलीफा के पास में यदि इस टावर को यहाँ लगाता है तो इससे भी ऊंचाई के टावर में इसको लगाया जा सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा इसकी ऊंचाई होगी उतनी ज्यादा एयर कंडक्ट यानी कि एयर की फ्लो उसके अंदर ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इनके पास में एयर का वेंटिलेशन चलता रहेगा, हवा आर पार चलता रहेगा, उतना ये टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा रोटेट करेगा, और जितनी ज्यादा रोटेट करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि ये आने वाले टाइम के अंदर डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट क्या है। अब तक आपने देखा होगा जो पवन चक्की और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, मगर उसके अंदर सबसे बड़ी जो वीक पॉइंट है दोस्तों, उसके अंदर सबसे ज्यादा मेंटेनेंस की चार्ज बहुत ज्यादा है। उसके अलावा वो कम हवा के अंदर वो रोटेट नहीं होता है। मगर इसके अंदर सबसे बड़ी जो खास बात है, ये बिल्कुल भी डिसर्ब मतलब वो नॉइजेबल नहीं है, बिल्कुल भी शोरगुल पैदा नहीं करेगा। इसके अंदर किसी तरीके की मेंटेनेंस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बहुत ही कम हवा के अंदर इस टेक्नोलॉजी को यहाँ मूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है जितनी ज्यादा ऊंचाई होती है, आपको पता है कि ऊंचाई में उतनी ज्यादा हवा चलती है, और जितनी ज्यादा हवा चलेगी तो ये टेक्नोलॉजी इसकी जो पंखुड़ी है उतनी तेज यहाँ मूवमेंट करेगा, और जितना मूवमेंट करेगा दोस्तों उतना ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन पैदा होगा तो नो डाउट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी उतना ज्यादा जनरेट करेगा। यदि मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये दुनिया के अंदर मैं केवल शॉर्ट पॉइंट बता रहा हूं ताकि आम लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है जिससे आने वाले टाइम के अंदर हवा के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर एक बिजली का नया स्रोत पूरे वर्ल्ड को मिलने जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी हो सकता है कि किसी को अजीब सा लगे, मगर मैं दोस्तों क्लियर बता दूं, आने वाला टाइम ये अजीब वाला टेक्नोलॉजी ही लोगों को दिल को छू जाने वाला है। ये बातें आप लोग आज समझ लेना। दूसरी बात, ये दुनिया के अंदर इसकी जो डिमांड क्यों बढ़ेगी, ये जो टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर डिमांडेबल टेक्नोलॉजी क्यों है,
इसके पीछे कारण जानने की जरूरत है। अब तक हमारे पास में बिजली पैदा करने की मैं स्रोत की बात करूं, वो 40 से लेके 45% तक हम पूरे वर्ल्ड को कवर कर पा रहे हैं। यानी कि अभी भी हम लोग इतने अभी पीछे डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं कि पूरी दुनिया को 100% बिजली दे पाए। मगर आज जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, यदि इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे करके आगे लगाया जाता है, तो इसकी मैं डिमांड की बात करूं, इसकी डिमांड आने वाला टाइम में एवरीवेयर, दुनिया के अंदर हर जगह पर इसकी डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां पर वहां पर पॉल्यूशन नहीं है, और ऐसा कोई कंट्री है जहां पर उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना पड़े। क्यों? इसके पीछे, डिमांड के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या है? ताकत दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाला टाइम के अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जाने वाले हैं। वो टेक्नोलॉजी एक इतनी बड़ी चीज है कि आने वाला टाइम में हर कोई चीज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम लोग चलाने वाले हैं। चाहे हमारी रोबोट हो, चाहे हमारी गाड़ी हो, चाहे कोई भी घर के अंदर बहुत ही लग्जरी चीज, जो भी चीज है, वो सारी चीज हमारे कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी से। जब इलेक्ट्रिसिटी इतनी नीड की चीज हमारे पास में है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज आने वाला टाइम के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी गवर्नमेंट के ऊपर पड़ने वाला है। तो जब ये चीजें गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होगा, तो नो डाउट हमें कहीं ना कहीं सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो सोल्यूशन, आज जो व्यक्ति इस प्लान को देख पा रहे हैं, आज जो व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी को देख पा रहा है, ये एडवांस मान के चलिए कि आप यहां से 10 साल पहले की जिंदगी आप जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं इनको। क्योंकि लोग बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान अदर कंट्री से 20 साल हम लोग पीछे हैं। ये क्यों कहते हैं? टेक्नोलॉजी के मामले में, हमारी मानसिकता के मामले में अभी भी हम लोग 20 साल पीछे हैं। दोस्तों, इस मानसिकता को दूर करने का एक ही रास्ता है। यदि अभी भी हम लोग सही तरीके से इस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाए, तो हमारी मानसिकता को आज समझना पड़ेगा। यदि 20 साल को कवर करना है, उस टेक्नोलॉजी को आगे लेकर के जाना है, तो एक ही आज के जमाने में सबसे फास्ट मूवमेंट वाला कोई टेक्नोलॉजी तरीका है, तो वो है आपको टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और वो भी कौन सी? डिमांडेबल टेक्नोलॉजी के साथ में, जिनकी पूरी दुनिया में जरूरत है। दोस्तों, यही वो टेक्नोलॉजी दुनिया में डिमांड की होगी। क्यों? क्योंकि ये जो विंड पावर एनर्जी के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी जब पूरी दुनिया में लगाई जाएगी, तो होगा क्या? इससे दोस्तों सबसे बड़ा जो फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पावर स्टेशन के रूप में पूरे वर्ल्ड के अंदर ये टेक्नोलॉजी लगेगी। जैसे आप लोग पेट्रोल पंप देखते हैं, जब पेट्रोल पंप आप देखते हैं, तो पेट्रोल पंप से हम लोग वहां पर ईंधन डलवाते गाड़ी में, उसी के माध्यम से हम लोग अपनी एनर्जी को लेकर के हम लोग अपनी सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उसी तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है, एक पावर स्टेशन के रूप में दुनिया के हर कोने कोने में, हर जगह पर जहां की डिमांड होगी, उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा। जब इस टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा, तो आप समझ पाते हैं कि दुनिया में दोस्तों आने वाला टाइम में जो गाड़ियां है, गाड़ी यदि मैं बात करूं इसी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से यदि इनकी पूर्ति कर दिया जाए, तो दोस्तों कितनी डिमांड वाली टेक्नोलॉजी हो सकती है, इसका अंदाजा थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो। ये तो मैं वो बात बता रहा हूं कि हकीकत में ये जो चीज होने वाला है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और आने वाला टाइम के अंदर वर्ल्ड की जो मैंने आपको बताई है, इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत हम लोग 75 से लेके 80% इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है, वो हम लोग यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। अभी पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिमांड के पीछे रीजन क्या है? सबसे बड़ी, किसी चीज की डिमांड कब बढ़ती है, वो चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। डिमांड किसी चीज का तब बढ़ती है यदि कोई टेक्नोलॉजी पैटेंट हो और बनाने वाला कोई दूसरा ना हो, और इसी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के अंदर बनाने वाला, देने वाला कोई वीटर की ही टेक्नोलॉजी किसी के पास में हो, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज की कीमत बढ़ने के पीछे रीजन होता है सप्लाई का सबसे बड़ा गेम होता है, सप्लाई का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे अनलिमिटेड डिमांड मार्केट के अंदर बनी हुई है और अनलिमिटेड सप्लाई भी आपने कर दी, तो दोस्तों उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अनलिमिटेड बनाने वाले लोग हैं और अनलिमिटेड सप्लाई करने वाले लोग हैं, तो दोस्तों उसकी कीमत नहीं बढ़ती है। बस उसके पीछे, कीमत बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जितनी ज्यादा उसकी डिमांड क्रिएट होगी और सप्लाई देने वाला कहीं पर भी हो, उसका पैटेंट टेक्नोलॉजी के साथ में बनाने वाला कोई एक व्यक्ति हो, तो दोस्तों मैं कहता हूं दुनिया के अंदर इसकी डिमांड इतनी खतरनाक हो जाएगी, इसका कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब मैं बात करूं कि दुनिया के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी, डिमांडेबल टेक्नोलॉजी क्यों है? डिमांडेबल टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जैसी अपनी पूर्ति करेगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर डिमांड होगी, तो नो डाउट आने वाले टाइम के अंदर सबसे ज्यादा इसकी, मैं शेयर की, मैं वैल्यू की बात करूं, तो सबसे ज्यादा इसकी डिमांड होने जा रहा है। इसके पीछे कारण बता दूं, आज आप मार्केट के अंदर कोई सा भी शेयर उठा के देखिए,
चाहे वो अमेजन का हो, चाहे गूगल का हो, चाहे फेसबुक का हो, जो भी चीज एनीबॉडी, कोई भी चीज आप मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं, जो शेयर आप देख पा रहे हैं, वो क्या है, सारी चीज लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों ये जो जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, इस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी खूबी बात यह है कि अभी ये शेयर नहीं है, ये प्री आईपीओ है। तो प्री आईपीओ के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आपको आने पर यहां पर को ऑनर बनने की आपको एक यहां पर आपको यहां पे इनवाइट कर रही है कि आप इसके को ऑनर बनने की, आप यहां शह मालिक बनिए। और इस टेक्नोलॉजी के बदौलत पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी ये टेक्नोलॉजी लगेगा, तो को ऑनर के माध्यम से बड़े लेवल पे पैसा कमाने का एक बेहतरीन मौका आपको दिया जा रहा है। दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताई है कि वैल्यू क्यों होगी, वैल्यू होने के पीछे कारण मैंने बताया कि इसकी डिमांड सबसे बड़ा रोल है। उसके पीछे अब मैं बात करूंगा कि आने वाला टाइम में इसकी जो अभी जो प्री आईपीओ है, अभी ओनली फॉर 13 या 14 पैसे में इसको आप देख पा रहे हैं, मगर यहां पर ये ज्यादा दिन का हमारे पास मेहमान नहीं है। मैं कहता हूं टोटल हमारे पास में टोटल जो शेयर है 314 बिलियन हमारे पास में टोटल हमारे पास में ये शेयर है, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन ओनली फॉर 14.2 स्टेज के अंदर हमें सारा चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओनली फॉर हमारे और आपके लिए यहाँ पर कितना हम लोग रोल निभा सकते हैं और हमारे आपके लिए कितनी सारी संपत्ति यहाँ बनी हुई है वो बता दूं मैं आपको। उस 314 बिलियन के अंदर जो परसेंटेज की मैं बात करूं, ओनली फॉर 48% ही हमारे लोगों के लिए रखा हुआ है। यानी कि 314 बिलियन का 50% मान के चलिए 170, यानी कि 170 बिलियन। 170 बिलियन के अंदर भी हम लोग केवल उसके अंदर खरीदने के जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, जो हमारे पास टाइम है, वो केवल हमारे पास 48% ही 170 बिलियन में से हम लोग खरीद सकते हैं। बाकी कंपनी के बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लिए हैं, और भी अदर अदर गवर्नमेंट के लिए हैं। क्योंकि जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो सबसे पहले गवर्नमेंट के साथ में डील वगैरह, कॉर्पोरेट सिस्टम के साथ में बैठक करके इसकी सारी चीज का शेयरिंग करके उनके साथ में कॉर्पोरेट डील होती है। वो उसी तरीके से केवल हमारे और आपके लिए जो हम लोग पब्लिक हैं, तो हमारे और आपके लिए ओनली फॉर 48% के हम लोग शेयरिंग पार्टनर बन सकते हैं। इसमें फायदा क्या होगा, अभी जो लोग इसको बाय कर रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो दुनिया के अंदर ये डिमांडेबल टेक्नोलॉजी, जो व्यक्ति इसको अभी ये खरीद पा रहे हैं, मानो $100 का भी खरीदता है, तो आने वाला टाइम के अंदर ये $100 की जो संपत्ति है आपके कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि कुछ सालों के बाद में जैसे ये शेयर में लिस्टिंग हो जाएगा, दोस्तों ये जो शेयर है ऑटोमेटिकली कम से कम आपकी $100 का आज का निवेश, ये आपका $1 में भी लॉन्चिंग होते फिर भी 40 लाख रुपए की संपत्ति आपका बनने जा रहा है। और यदि $10 लॉन्चिंग होती है तो आप इसका कैलकुलेशन खुद लगा करके देख लेना। यदि कोई व्यक्ति आज का निवेश यदि सही मायने पॉजिटिव माइंड लेकर के करता है, तो दोस्तों आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली यहां पर वंडरफुल होने जा रहा है। दोस्तों कुछ पॉइंट मैंने आपको बताई है जो आने वाला फ्यूचर के अंदर बहुत शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर एक डायनेमिक फ्यूचर आप अपने खुद का जिंदगी में देख सकते हैं। ये जो कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, जो व्यक्ति आज यहाँ पर इस सिस्टम को ऑटोमेटिकली यहाँ पर समझ पा रहे, देख पा रहे, तो यहाँ पर वो पैसिव इनकम के दायरे में या स्टैंडिंग होने जा रहा है, खड़े होने जा रहा है। पैसिव इनकम वो होता है कि काम एक बार कोई चीज बाय करी और जिंदगी भर उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो पैसिव इनकम ये है कि जिंदगी भर आपको एक बोनस के रूप में, यहाँ पर डिविडेंड फंड के रूप में यहाँ पर इनकम आपके पास आता रहेगा। और लाइफ टाइम ये जो पोर्टफोलियो आज आप यहाँ जनरेट कर रहे हैं, तो फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा जनरेट, यानी कि ये पोर्टफोलियो आपको लाइफ टाइम आपके 3 पीढ़ी तक ये सुधारने वाला टेक्नोलॉजी आपके सामने अवेलेबल है। दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताई है, ये हमारे सामने एक प्रोटोकॉल सिस्टम है जो मॉस्को रूस के अंदर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। एक्चुअली क्या कि हम लाइव भी दिखाते हैं इनको, मगर आज थोड़ी टाइम की कमी की वजह से थोड़ी और भी बहुत सारी चीज चर्चा करनी है आप लोगों से, तो उसके बारे में मैं दोबारा करके मैं अपनी पॉइंट को यहीं तक रखना चाहूंगा। हमारी जो विटर के पॉइंट मेरा यह तक काफी है, और बाकी मेरी जो आगे का इंफॉर्मेशन है, मिस्टर मोहित जी हमारे साथ में आज अवेलेबल है, आज उनकी भी सुनेंगे और उनका भी पॉइंट है आज। तो आज कुछ हम नई पीपीटी के साथ में स्लाइड कन्वर्ट करने वाले थे, मगर कुछ अभी प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है, जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मगर अभी मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर मोहित जी को। मोहित जी मेरी आवाज को सुन पा रहे, प्लीज? यस मोहित जी, यदि मेरी आवाज को सुन पा रहे, प्लीज। या विपुल जी। यस
हाँ, थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। राइट, आज बहुत इन द सेंस 3-4 दिनों के बाद में आज कंटिन्यू कर रहा हूँ मीटिंग को। राइट, और इन 3-4 दिनों में मेरे पास जो मेरे लिए जो रिव्यू आए, राइट, और सभी का सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा। ओके विपुल जी, स्क्रीन को आप हटा दीजिए उधर से। विपुल जी, जस्ट अ मिनट रुकिए, आप उधर से स्क्रीन को हटा दीजिए, जस्ट अ मिनट। ओके ओके मोजी, वेलकम। और हाँ, अभी ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। राइट, और मैं बताना चाहता हूँ कि 3 से 4 दिन मैं कहीं पर व्यस्त था, और इन 3 से 4 दिनों में जो मार्केट के जो रिव्यू आए मेरे लिए, कहते कि मोहित जी ना साइड में हो गए हैं। साइड इन द सेंस मतलब अभी फ्रंट में नहीं है। राइट, वो कहीं या तो डाइवर्ट हो गए हैं, राइट, या फिर कहीं कुछ और चीजें देखने लगे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है बॉस। जब कोई भी पर्सन जाता है इन द सेंस जब कहीं पर इंगेज होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ मजबूरियां रहती है। राइट, जैसे कि मैं भी कहीं पर इंगेज था 4 दिनों के लिए। ओके, लेकिन मैं आज से और अभी से मैं फुल टाइम, जैसे मैं लास्ट टाइम कर रहा था, मैं फुल टाइम आगे भी इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज एक दुखद सूचना से मैं आज कंटिन्यू करूंगा। राइट, और भविष्य में अगर ऐसा कुछ हमारे साथ अगर ऐसा होता है, राइट, तो हम लोग कितने उसके लिए तैयार हैं, कितनी हम लोग उस परिस्थिति के लिए तैयार हैं, या फिर हम लोग जो अपना एक कोर टीम का एक जो एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या उस चीज के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्या उसके लिए हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट बोल लीजिए, राइट, या हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। राइट, तो इस तरीके से ओके। तो एक दुखद सूचना ये है कि हमारी ही टीम में से जो मेरी बनारस वाली टीम है, राइट, उधर से एक चंद्र प्रकाश जी थे, राइट, मैं थे बोल रहा हूँ मीन्स वो अभी शायद आज मॉर्निंग में ही एक्सपायर कर गए थे वो। राइट, तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए हमारी संवेदनाएं उनके साथ में है। ओके, और एक चीज बताना चाहूंगा कि ये मैं अनाउंसमेंट करता हूँ अपने बिहाफ पर। राइट, इसमें कोई भी कोर टीम का अगर इन्वॉल्वमेंट ना भी हो, तो भी मैं एक खुद से अनाउंसमेंट करता हूँ स्पेशली उनके लिए। राइट, उनकी जो टीम थी वो वहां पे जो लीड कर रहे थे वो और मैं मिलके, उनकी जो ड्यू इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो वहां का जो टॉप लीडर और मैं, मतलब वहां के टॉप लीडर मिस्टर राम भारती जी हैं और मैं, राइट, क्योंकि एज ए मैं पूरी की पूरी टीम को लीड कर रहा हूँ। तो उन जो चंद्र प्रकाश जी थे, उनकी जो भी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स होंगी, ठीक है, उनको हम दोनों मिलकर फुलफिल कर देंगे। राइट, जिससे कि जिस चीज के लिए, मतलब जिनके लिए उन्होंने वो शेयर को प्रिजर्व किया, सिस्टम को ज्वाइन किया, वो अल्टीमेटली उनको फाइनली डिलीवर हो सके, ऐसा। ओके, अब दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज आज जो चीजें हमने देखी, मैंने आज सुना उनके बारे में, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये सडनली क्या हो गया। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में ही हैं, राइट, और समय लंबा है, सबको पता है। 2023 तक तो इसका स्टेज 14 ही फिनिश होगा, राइट। 23 के बाद में 24, 25 उधर जाके वो लिस्टिंग होगा। अब ये मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हम लोग अपनी कोर टीम में जो भी अभी को फाउंडर्स हैं, हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। अगर सबकी मंजूरी रही तो हम लोग एक नए अपडेट के साथ में वहां पर चीजें आपको साथ एक्सप्रेस करेंगे। ओके, और अभी हमारे साथ में ही बहुत सारे को फाउंडर्स हमारे साथ मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, राइट। तो उनको मैं एक सूचना पहुंचाना चाहता हूँ कि जो भी अपने 10 कंप्लीट कर रहे हैं को फाउंडर, कोर टीम के बन रहे हैं, राइट, अगर को फाउंडर्स के साथ में अगर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होती है, तो हम लोग सभी को फाउंडर्स मिलके उनकी जो ड्यू इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो हम लोग फुलफिल करेंगे। ओके, मैं ठीक है, आनंद परदेसी जी, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो और अगर उस पर एग्री करते हो, तो आप अगर 2 शब्द कुछ कहना चाहे तो आप उस पर कह सकते हैं, फिर हम लोग आज के मोटिव पे चलेंगे। आनंद परदेसी जी,
एंड विपुल जी, मैं आपसे भी आपके व्यूज लेना चाहूंगा। आप दोनों लोगों के माइक अनम्यूट है, राइट? आनंद परदेसी जी एंड विपुल जी। विपुल जी, क्या ऐसा करना ओके, ठीक रहेगा सर? मोहित जी, वेरी नाइस। एक्चुअली क्योंकि हाँ, ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और मुझे तो अभी जैसे आपने बताया, इन्फॉर्मेशन मेरे पास था नहीं, तो जैसे ही आपने बताया, नो डाउट इसमें एक्चुअली क्या कि हम लोग एक ऐसे परिवार की तरह हैं, तो हम लोग हर कंडीशन में उनके साथ में हैं। और मेरी तरफ से जैसे भी होगा, जो भी रहेगा, सबकी जो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसी पोर्टफोलियो है, उसकी लाइफ की, उनकी फैमिली को एक ऐसी ऐसी एक ड्रीम मिले, तो आने वाला टाइम के लिए दोस्तों हम करने के लिए तैयार हैं। और जो भी मेरी तरफ से बनेगा, मैं 100% पूरा करने के लिए तैयार हूं। और मेरे साथी दोस्तों, ये केवल, और जैसे आज आपने बात बताई, तो ये तो हार्ट करने वाली बहुत बड़ी बात है कि मेरे को पता नहीं था इस बारे में, मगर फिर भी आपने जो बताई, तो मुझसे ये लगा कि दोस्तों आज हम लोग इस टीम वर्क का सबसे बड़ा जो संवेदन वाला पार्ट क्या है, आज हम एक दूसरे को पूरा, किसी का शक्ल जानते नहीं है, देखते नहीं है, मगर फिर भी आज हम लोग एक दूसरे के पूरक कैसे बन सकते हैं, पूरक कोई कहीं पर भी रहे। ये एक ऐसी एक टीम वर्क है जिसके माध्यम से उसकी लाइफ के अंदर उसकी एक ऐसी इसकी पोर्टफोलियो क्रिएट होने जा रहा है। तो आने वाला टाइम में चाहे उनकी संपत्ति कैसी भी रही हो, तो इनके फ्यूचर के अंदर ये इतना शानदार पोर्टफोलियो उनके फैमिली के लिए गिफ्ट होने वाला दोस्तों। एक मान के चलो, पेंशन की एक तोहफा उनके पास में ऑटोमेटिकली गिफ्ट जाने वाली है। तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है महेश जी, और जो भी बनेगा मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके महेश विपुल जी। जी धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद विपुल जी। ओके, एंड उन्हीं की टीम के मेन लीडर है राम भारती जी। अगर मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं, तो आप एक बार प्लीज हैंड रेस कर देना, राइट? थोड़ा सा हम लोग और उस चीज को क्लियर कर लें। ओके, राम भारती जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, तो आप एक बार हैंड रेस कीजिएगा। ओके ये तो हो गया एक चीज। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग अपडेट्स एंड रिव्यू पे, राइट? तो आज है 1 जुलाई, राइट? तो आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है, राइट, कि इस महीने के अंदर मे बी चांसेस है, 1% चांस है, लेकिन हो सकता है ऐसा। क्या हो सकता है? कि हम लोग स्टेज 4 के अंदर जा सकते हैं। ओके, 1 जुलाई है, अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं। 1% चांस है कि हम लोग जुलाई के एंड तक, इसी मंथ के लास्ट वीक में, राइट, या फिर थर्ड लास्ट वीक में, तीसरे या चौथे वीक में हम लोग 4th स्टेज के अंदर जा सकते हैं। ओके, ये एक नया अपडेट है। ऑलराइट, जो भी मतलब कन्वर्सेशन से डेमिस्ट्री सर के साथ में जो भी ऐसी चीजें पता लगी, मे बी हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए भी प्लीज प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। ओके, जिस तरीके से हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, नो डाउट मैं बोलता हूँ हमारी टीम पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है और सबसे बेहतरीन रिक्रूटमेंट कर रही है, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हम लोग बीटर के अंदर जो ओवरऑल 10,500 या 11,000 जो टोटल इन्वेस्टर्स है कंपनी के, उसमें से हम लोग 1,700 एक्टिव इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा जो शेयर है कंपनी के साथ में, वो एक बड़ा बड़ा टीम शेयर है जो हम लोग एक्टिवली काम कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन उसी से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो ये कि प्लीज आप अच्छे हो सकते हो, नो डाउट आप अच्छे हो, राइट, लेकिन आपके जो टीम मेंबर्स आ रहे हैं, जो स्पेशली रेगुलर बेसिस पे जो नए नए लोग आ रहे हैं, राइट, उनको प्लीज आपको पुश करना पड़ेगा उनकी इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यूअसली टाइम पर पे करने के लिए। ओके, तो ये एक अपडेट है कि हमें हमारी टीम की जो इंस्टॉलमेंट्स है, वो हमें टाइमली आगे हमें पास ऑन करनी है कि भैया अपनी इंस्टॉलमेंट को टाइमली पे करते रहिए प्लीज। ओके, ये अब अगर मैं जानना चाहूंगा एक चीज और, कि प्लीज अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो वो अपना चैट बॉक्स में कर सकते हैं। एवरीवन आर स्टैंड इन दिस सिचुएशन, या राइट सर? किसी के भी कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि अनुपमा जी हैं, अनुपूर्णा जी हैं, राइट, अन्नपूर्णा जी, ओके, एक बार जैसे बैठा, उन्होंने अपना हैंड रेस कर रखा है। अन्नपूर्णा जी, आप चाहो तो अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अपना चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर मैं अभी 2 मिनट बाद ही आपको अनम्यूट करूंगा।
ओके, फिर हम लोग चीजों को जानेंगे। ऑलराइट। और और मैं क्या कहना चाह रहा था, और मैं ये कहना चाह रहा था कि प्लीज जो भी हम लोग अभी आगे शेयर्स के पैकेजेस को हम लोग जो बाय कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर अगर मैंने $100 से शेयर पैकेज बाय किया तो मुझे जो नेक्स्ट हायर शेयर पैकेजेस है, राइट, अगर वो बाय करना है तो कोई अलग फ्रेश एंट्री लगानी पड़ेगी या फिर उसी आईडी पे हो जाएगा? तो डेफिनेटली सर, उनको मैंने बताया कि आप सेम आईडी पर ही यहाँ पर कितने भी मल्टीपल शेयर पैकेज को बाय कर सकते हो। ओके। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जब हम बेसिकली हम लोग अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें मल्टीपल आईडी लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि अभी थोड़ा सा आप लालच छोड़ के, जो बेसिकली स्पेशली फॉर $17 का, सॉरी 17% का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पहले 3 लेवल के अंदर, राइट, लोग लोग क्या करते हैं, वहां पर अपना फोकस लगा लेते हैं काम स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो कहीं ना कहीं वो चीजें अपने आप में पजल करती हैं। और मेरा सिर्फ सभी से यही सजेशन रहेगा कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं तो प्लीज आप अपना सिंगल आईडी पे पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। ओके। क्यों? क्योंकि कंपनी भी जो देखेगी, इंस्पेक्शन करेगी अपनी टीम का, तो वो भी सिर्फ वही वही आईडी उठाएगी जिसपे बहुत ज्यादा डायरेक्ट होंगे और जिसपे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनेगा। राइट। अगर आप 3-3 4-4 आईडी या 5-5 आईडी लेके काम कर रहे हैं तो फिर वो कंपनी उसको जज नहीं कर पाएगी कि नो डाउट आप अच्छे लीडर हो, लेकिन एक जो फिल्टर लगेगा उस फिल्टर में आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके। और इसी के साथ ही एक और अपडेट देना चाहता हूँ, और इस पे जो क्लियरिटी है वो 2-3 दिन में हम लोगों को आ जाएगी। जैसा कि सबको पता है कि इसी साल अक्टूबर के अंदर दुबई एक्सपो में कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है। ओके। क्या हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे? आप और हम लोग डेफिनेटली सर हम लोग कर पाएंगे। ओके। इसके अंदर पार्टिसिपेट, और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, राइट, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम लोगों को अभी 2 से 3 दिन के अंदर पता लगने वाला है। ओके। और तो ये कहने का मतलब ये कि कमर कसने वाला समय आ चुका है, राइट, और हमें अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया आएगा उसमें टारगेट तो होगा ही होगा, नो डाउट, उसका कोई मतलब कोई भी कहीं पर भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, अभी अब जुलाई में है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, राइट, अभी 3 महीने हैं अपने पास में, और 3 महीने में हम बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे टारगेट को फाइट कर सकते हैं सब मिलके। ओके। और अभी मैं ओके, सुरेश नार्वेकर जी हैं, नॉमिनी नेम इन सर्टिफिकेट विल बी इंक्लूडेड, एनी अपडेट? मैं इनको बताना चाहता हूँ कि सर शेयर सर्टिफिकेट के अंदर जो है नॉमिनी डिटेल्स नहीं आएंगे। ओके। नॉमिनी डिटेल्स जो है वो कंपनी जब आपका डीमेट प्रोसेस करेगी, राइट, उसके अंदर एक नॉमिनेशन का क्लॉज होगा, राइट, तो वहां पर चीजें आप उसको कर पाएंगे। ओके। हाँ, लेकिन जो आपका शेयर सर्टिफिकेट्स है, आप उसको चाहो तो प्रिंट करके रख सकते हो, उसका कोई भी लीगल हायर उसको क्लेम कर सकता है। उन शेयर्स को उनका कोई भी लीगल हायर क्लेम कर सकता है। ओके। जैसे कि अभी चंद्र प्रकाश जी के केस में क्या होगा कि जो भी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं वो हम लोग उनकी फुलफिल करा देंगे। ओके। देन उसके बाद में जब भी मेच्योरिटी आएगी, मेच्योरिटी का मतलब क्या है? लिस्टेड होना। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जैसे ही ये शेयर लिस्टेड होंगे, राइट, और उन शेयर लिस्टिंग के बाद में अगर वो लोग उन शेयर्स को बेचना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग उनको सारा प्रोसीजर करा के तो फिर हम लोग उनको बोल देंगे कि ये चीजें आप कर लीजिए। ओके। और अभी तो हम लोग अर्ली स्टेजेस में हैं, तो अभी हम लोग चेंज भी, अगर हम चेंज करना भी चाहें, राइट, तो चेंज हो सकता है। वो एक प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा, सबको पता है कि वो डीसी प्रेजेंट करना पड़ता है उनको, डेथ सर्टिफिकेट, तो उसके अगेंस्ट में वो चीजें चेंज हो जाती है, तो सारा का सारा कंट्रोल उनके लीगल हायर पे चला जाता है। ओके। ऑलराइट। एंड हृदय कुलश्रेष्ठा जी हैं, वीटर का उपयोग वर्तमान में कहाँ हो रहा है? 1 मेगावाट के लिए लगभग क्या प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी? हृदय जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी इसका प्रोटोटाइप रेडी है, राइट, एक होता है डेमो वर्जन, उसके बाद में प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रोटोटाइप रेडी है, लेकिन इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो दुबई में 2022 में कंप्लीट होगा। ओके। अब उसके बाद में कि 1 मेगावाट के लिए लगभग क्या? सर 1 मेगावाट के लिए कोई कॉस्टिंग नहीं है, कोई कॉस्टिंग इन द सेंस, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 100 मेगावाट्स, राइट, 100 मेगावाट टू 300 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी का
प्रोविजन दिया गया है, और जिसमें कि इसकी जो मिनिमम कॉस्ट आती है वो $50 मिलियन की कॉस्ट होती है इसके एक प्रोजेक्ट की। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, राइट। और अब मैं जाना चाहूंगा अन्नपूर्णा जी के साथ में, राइट। एक बार प्लीज अन्नपूर्णा जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। ओके, अन्नपूर्णा जी आपने हैंड रेज हाँ किया जी, हुआ है, अपने बोलिए। माइक। या वेलकम मैम। हाँ, थैंक यू। जी मैम। हेलो। यस मैम, बोलिए कैसे। नहीं नहीं, ये नया नया कंपनी है ना। हाँ हाँ हाँ, इसके ये फेथफुल है क्या नहीं है, इसे सब लोग पूछ रहे हैं। आपका हाँ, क्या जॉब है? वेरी गुड वेरी गुड मैम, बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, राइट। अगर उन्होंने इसके लाइक इसको अगर स्कैन किया और डॉक्यूमेंट वाइज, राइट, कुछ वेबसाइट्स होती हैं स्कैम एडवाइजर, हाइप स्टेट्स, राइट, तो वहां पे इनका एक्चुअल डेटा रिट्रीव होता है कि कितनी सेफ है वेबसाइट, ठीक है, बिजनेस प्लान ओके। कितना सेफ है। यहाँ तक कि मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि रशिया की ही एक और कंपनी है मॉस्को से, राइट, और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। उनके जो सीईओ हैं, उनका नाम नहीं बोलूंगा ना, कंपनी का नाम बोलूंगा। ओके। जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि नो डाउट विटर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत जेन्युइन प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि पूरी की पूरी दुनिया को वो चेंज कर सके, पूरी की ओके। पूरी दुनिया की हवा को वो चेंज कर सके, ठीक है ना। तो बस जब बहुत बड़े विजनरी कॉन्सेप्ट होते हैं तो वहां पर हमें आ, समय रहते उसके साथ हमेशा खड़े रहना होता है, राइट, और एक विश्वास होता है, फेथ होता है, राइट। सेम जब हाँ मतलब विजनरी की पॉजिटिव बात, है। हाँ हाँ अन्नपूर्णा पॉजिटिव मैम, है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से हमें विश्वास है कि भगवान होते हैं, तो हमें जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड एटीट्यूड होता है किसी चीज को लेके, तो हमें ऐसा मतलब खुद को भी फील होना चाहिए कि हाँ ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल दुनिया में आएंगी, दुनिया में आने के लिए ही बनी। आफ्टर ऑल ओके। जो डेमिस्टी हैं या डेनिस टैगलिन सर हैं, राइट, ये लोग कंटिन्यूअसली उस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट रेस कर रहे हैं, राइट। ओके। और नो डाउट बहुत अच्छा यहाँ पे होने वाला है। ओके मैम, ओके। ओके, थैंक यू वेल थैंक डन। यू थैंक यू मैम। अनीश कुमार जी, मोस्ट वेलकम सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, अनीश जी। मोहित जी नमस्कार एंड गुड नमस्कार इवनिंग। नमस्कार सर। जितने भी हमारे हमारे लीडर्स हैं उनको मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इतने जी अच्छे प्रेजेंटेशन देने के लिए। सर मेरे आज लगभग एक हफ्ता हो गया है और एक हफ्ते में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। वेरी मेरे गुड सर। रेफरल 3 जने हुए हैं और हम्म, हमारे सब नेपाल के भाई बहन हैं। जी और मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि इसके लिए जो हमारे ट्विटर के जो एप्स है, एप्स में हम मोबाइल में एप्स कैसे डाउनलोड करें और कैसे एक्सेस करें, डेली बेसिस में हम कैसे मॉनिटर करें, ये मेरे डाउनलाइन हम्म, के सवाल है। तो आपसे ये मैं पहुंचाना चाहता हूँ। थैंक यू। अच्छा ठीक है। अनीश जी देखिए, पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, वीटर का कोई भी एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन या फिर आई ट्यून या फिर आईफोन बेस्ड एप्लीकेशन, ऐसा कुछ एप्लीकेशन नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन आपको जो मॉनिटर करना है, राइट, वो आपको वेबसाइट्स पर ही जाकर ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, राइट, जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं सभी के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ ये चीज, राइट, क्योंकि ये चीज इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हम जो अपनी टीम के अंदर, राइट, हम जो अपनी टीम के अंदर ग्रोथ देखते हैं कि कोई भी कहीं से भी आके एड ऑन होता है और नीचे 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 लेवल्स पे लोग चले जाते हैं। अब अगर हम उनको फॉलो नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है। ओके, तो एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा यहाँ पर, और बाकी में बहुत अच्छी चीज है, आप विटर सपोर्ट पे जाके अपना यूजर नेम और अपना मेल आईडी उनको पास ऑन करके अपना स्टेटिक्स उनको बोलिए, स्टेटिक्स ओपन कराने के लिए कि काइंडली एनेबल माई स्टेटिक्स सो दैट आई कैन फॉलो माई ऑल टीम मेंबर्स, राइट। इतना आप लिखोगे, आपका 24 आवर के अंदर आपका आपके वेबसाइट सॉरी आपके बैक ऑफिस का स्टेटिक्स ओपन हो जाएगा, राइट।
तो वहां पर ना सिर्फ आप अपने टीम के कॉन्टेक्ट नंबर चेक कर पाएंगे, साथ में वहां पर आपकी जो टीम की ग्रोथ होगी, राइट। ग्रोथ में इन द सेंस आने वाली जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, अगर कोई इंस्टॉलमेंट को प्रेफर कर रहा है, राइट, तो आपको अनलिमिटेड डेप्थ में वो इंस्टॉलमेंट का भी आपको पहले से पता लगता रहेगा कि अब आज किसका डेट है, किसको फॉलो करना है। मींस कभी कभी क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट्स में हमें लोगों को पुश करना पड़ता है, लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपका इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है बॉस। ओके, तो कहीं ना कहीं इस चीज से प्रोडक्टिविटी बेटर होती है, ये चीज मैंने फील किया, जिस वजह से मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पर सबके सामने बोल रहा हूँ। जिसको भी ऐसा लगता है कि मुझे फॉलो करने में दिक्कत आ रही है, राइट, या इंस्टॉलमेंट्स का मुझे पता नहीं लग पा रहा कौन पे कर रहा है कौन नहीं पे कर रहा, वो आप विटर सपोर्ट पे जाके अपना स्टेटिक्स ओपन करा सकते हैं। अनीश जी और कुछ? होपफुली आपको आंसर मिला होगा आपका। एक बार फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, अनीश जी। थैंक यू मोहित जी। अब जो भी कंफ्यूजन के सवाल हैं वो तो मैं रेगुलर बेसिस रूप में आपके जो जूम मीटिंग में है उसमें ज्वाइन हो रहा हूँ और अपनी तरफ से बहुत ही दिल जान लगा के काम कर रहा हूँ ट्विटर के लिए और अपने वेरी लिए गुड, भी। वेरी गुड सर। बेसिकली इट इज फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर ट्विटर ओनली। तो आई एम सो हैप्पी विद दिस सच गुड प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। और फाइनली लास्ट में हम लोग चल रहे हैं एक बार विपुल जी के पास में फिर से। ओके विपुल जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। ओके, और आप जो भी इसको कंटिन्यू करना चाहें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट विपुल जी। ओके, थैंक यू मोहित। हाँ, ये भी होस्टिंग आपने आप पे कर। राइट, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आज का बहुत अच्छा रहा और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहा कि आज सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था। ये जो स्टैटिक्स वाला आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीम को ग्रोथ करवाने के लिए। और जो आपके पास में जैसे आईडी को ओपन करते हैं तो ओपन में देखिए बिल्कुल आपके राइट हैंड में बिल्कुल नीचे गोल सा एक ऑप्शन आता है। ये गोल्स ऑप्शन में जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हाय हेलो लिख करके जैसे आप ऑप्शन में स्टार्ट कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है, कि मेरा यूज़र आईडी ये है। तो प्लीज़ स्टैटिक अपने हिसाब से अपने स्टैटिक्स को ओपन करें और अपनी टीम को कंटिन्यू लीड करने का, फॉलो करने का एक बेहतरीन सिस्टम है। स्टैटिक्स जब तक आपके पास क्लियर नहीं होगा तो आप टीम को फॉलो नहीं कर पाएंगे किसके इंस्टॉलमेंट जमा हो रहा है या नहीं पा रहा है। बहुत अच्छी पॉइंट मोहित जी ने बताया, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और भी मेरे जितने भी साथी यहाँ पर कंटिन्यू बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं तो सबको, क्योंकि ये सब चीज जानना जरूरी है कि टीम को फास्ट तरीके से हमारे पास में टूल्स क्या क्या है, क्योंकि जब तक टूल्स आपके पास में प्रॉपर नहीं होगा तो हम प्रॉपर तरीके से टीम को ग्रोथ नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन केवल हम आपको एक शेयरिंग पार्ट का जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं तो ये क्या कि ओनली फॉर सुनने का नहीं है, ये चीजें कुछ चीजें आपको डायरी में नोट करने का भी है। जब तक आप डायरी में नोट नहीं करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे डेडिकेशन के साथ में, उनको टू दी पॉइंट को फॉलो नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका स्टेबल बिजनेस बहुत मुश्किल से खड़ा हो पाएगा। ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम आप कोई ज्यादा दूरी की रिश्तेदार नहीं है, वाली पर एक रिश्तेदारी हमारे बिजनेस की किस तरीके का बना हुआ है, एक वो रिलेशन है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में किसी भी कंडीशन में एक दूसरे का पूरक बन सके, आपके बिजनेस का पूरक बनने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका बिजनेस बड़ा हो और आपके पास में इनकम का इतना बड़ा जरिया हो। एफिलिएट मार्केटिंग के इतना शानदार जरिया दोस्तों, यहाँ पे यदि किसी इंसान ने ठान लिया कि मेरे को एक महीने में 1 लाख रुपए यहाँ से कमाना है तो बहुत ही इजी गोइंग यहाँ पर 1 लाख रुपए यहाँ पर कमा सकते हैं। आपकी संपत्ति भी बनेगी और संपत्ति के साथ में आपकी इनकम भी जरिया पैदा हो जाएगा। हमारे लिए वो एफिलिएट मार्केटिंग पड़ा हुआ है, वो चीजें मैंने आपको सारी चीज बताई है। तो एफिलिएट मार्केटिंग को एक बार बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। ये दुनिया की वो प्लान नहीं है कि आपके लेफ्ट में 10 लगाओ, राइट में 10 लगाओ, मैचिंग होगी, इनकम आएगी। बाइनरी जनरेशन प्लान की तरह वो चीज नहीं है दोस्तों। ये आपके टीम के अंदर कोई एक व्यक्ति भी डायनेमिक, यदि उसको आपने सही तरीके से इस सिस्टम के बारे में आपने कन्वर्ट कर दिया तो वो अकेला एक व्यक्ति आपके यहाँ पर पहाड़ खड़ा कर सकता है और उस पहाड़ की इनकम भी आपके पास में आएगी। दुनिया की सबसे डायनेमिक सिस्टम मेरे को इस टेक्नोलॉजी की बदौलत ये चीज मेरे को पहली बार देखने को मिला कि ये टीम के अंदर एक आदमी भी काम करे फिर भी आप यहां से करोड़ रुपए कमा सकते हैं। यहां पर किसी तरीके से किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है।
और समय को देख करके हमारा टाइम लमसम पूरा हो ही चुका है, और आज हम लोग के केवाईसी का पार्ट पूरा करने वाले थे, मगर बहुत अच्छी बात बताई, थोड़ी सी मेरे को अच्छा लगा कि अब अपन ये काम सब कल की जो सेशन है उसमें केवाईसी के अंदर मैं 5 मिनट के अंदर केवाईसी का जो सेशन है वो मैं आपको क्लियर करके दिखा दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के सेशन में आप लोगों ने एक अच्छा रोल निभाया और शानदार तरीके से आपने अपनी जो टाइम है, कीमती समय को बेहतरीन अंदाज में इसको देखा, इसको मुझे सबसे अच्छा लगा। और आगे की मैं बात कर रही हूँ, कंटिन्यू बिजनेस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने न्यू गेस्ट को बैठाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका बिजनेस एजुकेटेड कब होगा? केवल आपकी सीखने से केवल आपके पास में एजुकेशन का भंडार होता जाएगा, मगर यही चीज आपने लोगों के अंदर शेयरिंग, क्योंकि ये शेयरिंग का बिजनेस है, जितना ज्यादा आप लोगों को शेयरिंग करेंगे ये बिजनेस आपका ऑटोमेटिकली एजुकेटेड बिजनेस में कन्वर्ट होता जाएगा। तो मेरा आज का सेशन यही तक मैं रखना चाहूंगा और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो मेरे कोर टीम के सह मालिक हैं और यहाँ पर जो भी बिजनेस के अंदर नया एसोसिएट हो रहा है, को ऑनर के रूप में इस इंडस्ट्री के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर साथी बन रहे हैं, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, ताकि आप भी अपने जिंदगी के अंदर एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाएं और अपने परिवार के बारे में एक शुभ चिंता के घड़ी के रूप में साथ दे दें। थैंक यू। आज के सेशन में यही तक रखना चाहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके।